नमस्कार दोस्तों, आपका यूपीएससी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि वी हैव लॉन्च द फाउंडेशनल कोर्सेज फॉर द आईएएस प्रिपरेशन। यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए फाउंडेशनल जो कोर्सेज है वी हैव लॉन्च्ड इट, and yes, we'll see the features, who can join the program, for whom it is beneficial, how much fees is there, how the structure of the program is there. So each and everything we are going to see in the upcoming slides. So as you can see on my screen, so it is a UPSC Study Point YouTube channel which brought the various courses or the foundational courses for you for the IAS preparation. So to introduce myself, my name is Navnath Nirmale. So I have 4 years experience as the faculty of geography and also environment and ecology, also disaster management. And as you can see here, I have taught in Delhi, Jammu and Kashmir, Indore and online for 4 years. Okay, so let's move forward. It was a bit about me, and yes friends, we can see the features of the course, and really we are very much delighted to start the online classes for the IAS preparation, being at your places, your own places, no matter whether you are at your home or anywhere else, wherever in the country, not only in our country but also in India or also in world, जहाँ पे भी रहो कोई दिक्कत नहीं, but we are there to help you. So it is a 6 months in NCERT foundation course. तो उसके हम थोड़े से फीचर्स देखेंगे. सो वी हैव द एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़. अब देखो यस, अगर आपके पास 3-4 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस है, सो यस यू हैव द एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो एक्सपर्ट. हर जो सब्जेक्ट है वी हैव द डिफरेंट फैकल्टीज़ फॉर एवरी सब्जेक्ट. सो दोज आर द एक्सपर्ट वन. You can ask any questions, doubts and get the doubts cleared from them. Okay, so wide coverage of the topics. So wide coverage means what? Okay, whatever given in the NCERT book, definitely we will cover that. But what UPSC is demanding, what UPSC is expecting, those things also we will cover in this 6 months course. Okay, and focus will be all on the NCERTs. Okay, let's move forward my friends. So how to read newspaper, like you have to read the Hindu और मे बी इंडियन एक्सप्रेस. तो इनको कैसे पढ़ना है? सी द हिंदू में ऑलमोस्ट 20 पेज से ज़्यादा पेजेस आते हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 20 पेजेस. सो डू वी नीड टू रीड ऑल द पेजेस? नो, नॉट एट ऑल. सो यू नीड टू रीड ओनली 5 to 6 पेजेस. So within 60 minutes to the 90 minutes you will be able to read the newspaper, entire the Hindu newspaper. So this is how we are going to tell you how to read the newspaper and also prepare the notes, and also these notes can be attached directly with your syllabus of the mains and prelims as well. So wide coverage of the mains and prelims syllabus will be there. You don't have to worry it like at all. Okay, so written practice after completing the chapters and also timely feedback. So our feedback, it is what? Feedback mechanism, it is a 24 hours. So within 24 hours you will get the feedback. That is called as a timely feedback. जनरली वॉट हैपन्स कि बहुत सारी कोचिंग इंडस्ट्री है कि वो लोग एग्ज़ाम तो लेते हैं बट फीडबैक देने में 8 दिन लगा दिए, 10 दिन लगा दिए. सो इज़ इट द राइट थिंग? नो, नॉट एट ऑल. तो आपको फीडबैक बहुत जल्दी मिलना चाहिए, इसीलिए हम एफर्ट करते हैं, हम फीडबैक देते हैं. ठीक है, और ये ज़रूरी होता है. एज अ स्टूडेंट उनको फीडबैक जल्दी देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट का मन जो है कहीं ना कहीं अटक जाता है कि मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, कैसे फीडबैक मिलेगा, हाउ शुड आई इम्प्रूव अपॉन. सो दीज थिंग्स मस्ट बी वेरी क्विक एंड वी अश्योर यू दैट वी आर गोइंग टू गिव दिस थिंग्स वेरी टाइमली मैनर, टाइमली फीडबैक्स. सो डायरेक्ट इंटरेक्शंस विद द फैकल्टीज़ एंड डाउट रिजोल्यूशन. तो देखो ये भी बहुत प्रॉब्लम आता है व्हेन सम ऑफ यू ज्वाइन लाइक यूट्यूब चैनल्स. ओके, यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते हो आप लोग, ऑल्सो लाइक पेन ड्राइव कोर्सेज. ओके, तो वहाँ पे क्या होता है? इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन. व्हाट? वन वे कम्युनिकेशन. तो स्टूडेंट डोंट हैव एक्सेस टू द इंटरेक्ट विद द फैकल्टीज. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड फॉर देयर डाउट रिजोल्यूशन. यू विल डेफिनेटली एन्जॉय. एंड एवरी डे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड 4 hours every day for the 6 months. How? For the 6 months. Every day 4-hour class will be there for the 6 months for different subjects.
So really you will enjoy it. And yes, our batch is going to start on what? It is the 5th of June. Okay, we have various batches. The next batch, it is going to start on what? 15th of June. And fees of the program, it is very minimal, very minimal, very minimum, or the minimal, and it is only 6,000 rupees. See, we can understand the world going through like pandemic, COVID. So यहाँ पे पेरेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा? So we have kept in those things in mind, and this is a very minimal fees. So you will find it nowhere. बहुत बहुत कम फीस रखा है हमने, रियली लाखों रुपएस लगते हैं इसमें. बच्चे लाखों रुपए खर्च करते, लिटरली. आई हैव सीन इन दिल्ली, कश्मीर, इन इंदौर, इवन ऑनलाइन, बट दिस इज फीस इज़ वेरी मिनिमल. सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, यहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप मैसेज भेज सकते हो. इवन यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर ऑन द व्हाट इट इज़ अ टेलीग्राम. ठीक है दोस्तों, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच. ओके, एंड प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग कि क्या होगा 6 महीने के बाद, लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा, स्कूल कॉलेजेस. प्लीज़ डू नॉट डू दिस इफ़ यू आर वेरी सिंसियर इन IAS. अगर आपके सच में ड्रीम्स जो IAS बनने का ड्रीम है अगर फुलफिल करना है तो प्लीज़ ज्वाइन दिस कोर्स इमीडिएटली. ओके, एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट यू विल एन्जॉय द एंटायर कोर्स. You will gain the things. It will be very helpful for like fulfilling your dreams. So I really thank you very much. All the best. And yes, it is time to sign off. Chalo, bye bye. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का UPSC स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है. आज हम करंट अफेयर्स का एक स्कीम देखने वाले हैं. वो स्कीम का नाम है नगर वन स्कीम, सिटी वन स्कीम. ओके, और ये जो स्कीम लाया है वो कौन लाया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? अर्बन फॉरेस्ट. नगर वन मतलब जो शहरों में वन जो होते हैं उनके लिए एक स्कीम लेके आया है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिनके अभी मंत्री जो है वो कौन है? श्री प्रकाश जावड़ेकर जी. सो विश्व पर्यावरण दिवस, ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हुआ था. ओके, जहाँ पे हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं. और ये कौन जारी करता है? ये UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. ओके, और चलो दोस्तों, इसी के बारे में हम आज देखने वाले हैं. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये थोड़ा सा मेरे बारे में. नाम मेरा नवनाथ निर्मल है, 4 साल का एक्सपीरियंस है एज ए फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड ऑल्सो डिजास्टर मैनेजमेंट. And I taught in Delhi, Jammu and Kashmir, Indore and different online platforms. ठीक है, so let's move forward. So yes दोस्तों, फीचर्स ऑफ द स्कीम जो स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. सो एम्फासिस इज ऑन द अर्बन फॉरेस्ट्री. अर्बन फॉरेस्ट्री, ठीक है. अर्बन फॉरेस्ट्री मतलब जो शहरों में हम फॉरेस्ट्री या हम कोई पेड़ पौधे छोटे जो भी हम लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम अर्बन फॉरेस्ट्री. इसे ही हम नगर वन कहते हैं. क्या कहते हैं? नगर वन. तो जैसे जंगल के वन होते हैं वैसे नगर में भी वन लगाए जा रहे हैं. ठीक है, वो बहुत अलग अलग तरीके होते हैं. वर्टिकल फॉरेस्ट होता है, हॉरिजॉन्टल फॉरेस्ट होता है, आपके रोड के बीच में फॉरेस्ट्री होती है, बिल्डिंग के आंगन में फॉरेस्ट्री होती है. अलग अलग प्रकार की फॉरेस्ट्री है. सो ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. और आपको यह पता होगा कि इस बार का जो थीम है, जो थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वो क्या था? टाइम फॉर नेचर. दोस्तों ये याद रखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है UPSC या कोई भी जो स्टेट के एग्जामिनेशंस होते हैं. सो इस साल की एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? सो टाइम फॉर नेचर.
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, तो इसी शुभ अवसर पर हमारे सरकार ने या MoEFCC ने क्या किया, ये स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, एंड इसमें टारगेट क्या रखा है, टू डेवलप द 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम ये स्कीम है, और इसका जो 5 साल का जो क्लॉज है, 5 ईयर्स क्लॉज, इसको भी याद रखना है आपको। यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड विद द रिन्यूड फोकस ऑन द पीपल्स पार्टिसिपेशन। ओके, लोगों का सहभाग बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी सरकारी स्कीम में। ओके, और ऐसे स्कीम जहाँ पे फॉरेस्ट लगाना है तो लोगों का सहभाग होना बहुत ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, इट इज़ द पैरामाउंट in the implementation of the scheme, and it is for the 5 years, and 200 urban forests are being developed in upcoming 5 years. ठीक है, so this scheme also provide the opportunity to the states to manage the urban ecosystem. देखो, urban ecosystem जो भी है या urban ones है, उसको मैनेज करने में स्टेट का भी एक रोल होगा। स्टेट को भी एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि यू कैन मैनेज, यू कैन plant the urban ecosystem, you can sustain the urban ecosystem। आप उनका जो रोल है, जैसे लोगों का रोल है वैसे ही स्टेट का रोल ऑल्सो इट इज़ गिवन, एंड इट इज़ ऑल्सो विद द कोलैबोरेशन बिटवीन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, म्यूनिसिपल बॉडीज़, NGOs, कॉरपोरेट्स एंड लोकल पीपल। देखो, इट इज़ अ वेरी ब्रॉडर टर्म, सबका पार्टिसिपेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत एसेंशियल होता है किसी भी स्कीम में। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम आगे देखते हैं। सो दोस्तों, हम इंडिया के कुछ फैक्ट्स देखते हैं अबाउट द फॉरेस्ट्री या बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री और बायोडाइवर्सिटी। तो हम थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं, वो देखना ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, तो इंडिया हैज़ 8% ऑफ वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी। अगर वर्ल्ड का 100% बायोडाइवर्सिटी है तो इंडिया के पास कितना है, 8%। ओके, और इंडिया इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कितना, 7th लार्जेस्ट। ओके, सो ओनली 2.5% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड मास। ये 2.5 ने NCERT इट हैज़ गिवन व्हाट 2.4 लैंड मास जो है हमारे पास वर्ल्ड का। ओके, और 16% पॉपुलेशन। देखो कितना छोटा सा हमारे पास ज़मीन है एंड कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, एज वेल एज द कैटल पॉपुलेशन। सो ओनली 4% ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज वी हैव, and the mega biodiversity, the very huge biodiversity, okay, that we have is the result of the Indian ethos is to be the synchronized with the nature। देखो, हमारा कल्चर ऐसा है कि नेचर के साथ एकदम अटैच हुआ है, एकदम जुड़ा हुआ है, हम नेचर को भगवान मानते हैं। सो ये इंडियन ईथोस जो है, इंडियन कल्चर जो है, क्या है, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कल्चर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द environment। So India has a 4 out of 35 global biodiversity hotspot। देखो, 4 बहुत बड़ी चीज़ है। It means that India has the very good biodiversity in the world। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो थोड़ा सा हम इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे, फॉरेस्ट एरिया। ओके, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो, इंडिया के फॉरेस्ट पॉलिसी में क्या लिखा है कि एटलीस्ट वी हैव 33% ऑफ द फॉरेस्ट। कितना, हमारा जो एरिया है पूरा उसका 33% क्या होना चाहिए, हमारा फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। बट हमारे पास कितना है, 24। तभी भी मतलब 24.5, तभी भी हमारे पास बहुत फॉरेस्ट एरिया कम है एज पर द टारगेट ऑफ दिस फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। सो टोटल फॉरेस्ट and tree cover, it is around 80.73 million hectare, which is a 24% of the geographical area of the country। अगर हम एरिया वाइज देखें, ये देखो प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट्स दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। अगर आपको फॉरेस्ट के ऊपर मेंस में भी कोई क्वेश्चन आता है तो ये फैक्ट आप डायरेक्टली दे सकते हो। सो मध्य प्रदेश हैज़ अ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। हम एरिया की बात करें, एरिया वाइज बात करें, नॉट परसेंटेज वाइज हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट मध्य प्रदेश और सेकंड अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन ओडिशा एंड देन महाराष्ट्र। ये 5 स्टेट ऐसे हैं कि जिनके पास एरिया वाइज जो हमारा फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड इट इज़ द महाराष्ट्र।
अब देखो मध्य प्रदेश कहाँ पे, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में, उसी के बाजू में क्या है, छत्तीसगढ़ है, उसी के बाजू में क्या है, उड़ीसा है, उसी के बाजू में क्या है, इट इज़ महाराष्ट्र। 4 स्टेट तो एक ही जगह पे हैं। इट इज़ ओनली दैट अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश, इट इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आता है अरुणाचल प्रदेश। फाइन, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर। तो अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, मिज़ोरम के पास। मिज़ोरम जो स्टेट है, मान लो आई विल शो यू द मैप, तो लाइक दिस, ये मान लो, यस, ओके, तो दिस इज़ अ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो यहाँ पे मिज़ोरम है। तो मिज़ोरम का कितना, ऑलमोस्ट 85% का एरिया जो इसका क्या है, इट इज़ कवर्ड विद द फॉरेस्ट। देन अरुणाचल प्रदेश, ये देखो ये अरुणाचल प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट। देन मेघालय, देखो यहाँ पे मेघालय, दिस इज़ मेघालय, ओके। मणिपुर मिज़ोरम के एग्जैक्टली ऊपर है, ओके। देन नागालैंड, ये यहाँ पे। तो ये 5 स्टेट परसेंटेज वाइज अगर हम बात करते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के सारे, इज़ ऑल स्टेट बिलोंग टू द नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ इंडिया। तो अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इट इज़ लीडिंग। अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं तो हमारा सेंट्रल इंडिया जो है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र, दोज आर लीडिंग। एंड वन इज़ फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का एरिया बहुत लार्ज है और उसमें क्या बोलते हैं कि फॉरेस्ट कवर भी एरिया बहुत ज़्यादा है। सो इट वॉज ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच माई फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और इसको आपको याद रखना है, और दिस स्लाइड और दिस सेशन वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस पर्सपेक्टिव. नाउ इट्स टाइम टू sign off. Thank you very much. Have a nice day.